So now we proceed with the new topic, that is about the different symbols which are used while drawing a circuit diagram. Okay, in this, are you able to view it properly? Okay, in this, the first is the source. This we have already discussed in the first session, the source of the current. I told you there are two sources of the current. It is AC current and the DC current. I told you before, and this is your alternating current and your direct current. Getting it? These are the two main sources from which we get the electricity. So if you go to study about the alternating sources, from where do we get this alternating current? I am putting up here only. Here you get it from the mains, that is your mains in your houses. And second case is your AC generator. When your light goes off, we use generators. Those are all AC type of generators. Getting it? This is about alternating current. Where else direct current के लिए examples are, ये examples है. These are both the examples. Here we studied about the cells and the batteries. Okay, cell or a battery that we use. Now what are the use of this sources? It is first to supply electric current, that is we can maintain the flow of charge. If you maintain the flow of charge, the supply keeps on going on. Yes, and this is your first use, and certain examples which are used in laboratories, which I have already discussed, like the Leclanch cell, like the Daniell cell, like the lead accumulator, also called as a storage cell. I had given a give reason for this also. Okay, they are used in a direct current sources. Now how do we represent? How it is represented? How the sources are represented? So in case of DC, first we are considering about DC current. In a DC current, we draw two lines. We draw, I put it over here. You are able to see. We put a line, a bigger line and a shorter line. Okay, this is your main wire, cross sectional wire, and we put, for the longer line we take it as positive terminal, and for the shorter we take a negative terminal. So how it is put up? There are two vertical lines. Okay, there are two vertical lines of अनइक्वल लेंथ. देख रहे हो ना, एक छोटा है और एक बड़ा है, अनइक्वल लेंथ. इसमें से जो लॉन्गर है, द लॉन्गर वन इज written as plus. Okay, which means it is your anode, and the shorter one is designated as negative, and that is why it is your cathode. Getting? Okay, now as I had already described you while making a cell, बराबर था. ड्राई सेल मैंने बताया था, कैप, रॉड, इलेक्ट्रोलाइट, पॉजिटिव टर्मिनल एंड योर नेगेटिव टर्मिनल. सो व्हेन इट इज मूविंग, यहाँ पर मैंने बल्ब लगाया था,
यहाँ पर एक की यूज़ किया था जो कनेक्ट कर दिया मैंने. ओके, सो दिस इज योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो व्हेन द करंट इज मूविंग, ये आपका एक इंटरनल सर्किट है. सेल के अंदर जो कुछ भी है दैट इज कॉल्ड एज एन इंटरनल सर्किट, और ये जो बाहर का है दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सटर्नल सर्किट. तो मैं बता रहा हूँ आपको. व्हेन, रिमेंबर दिस पॉइंट, व्हेन द करंट इज ड्रॉन यानी निकालना. हम लोग इसमें से करंट निकाल रहे हैं. कहाँ पर? ये वायर के अंदर पास करने के लिए. सो व्हेन द करंट इज ड्रॉन आउट फ्रॉम अ सेल, इट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल to the नेगेटिव टर्मिनल. कहाँ पर? थ्रू द, रिमेंबर दिस वर्ड, थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट. ये जो है वो एक्सटर्नल सर्किट है. दिस इज योर एक्सटर्नल सर्किट. सो इट इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. वही लिखा है ना, व्हेन द करंट इज ड्रॉन from the cell removed, we are trying to catch up the current from the cell, from the this cell, dry cell. When current is drawn from this cell, it flows from positive terminal to the negative terminal. तो जैसे जैसे यहाँ से चार्ज करंट फ्लो होते जाएगा, अभी ये करंट वापस से इंटरनल सर्किट में कैसे जाएगा? इट विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो यहाँ पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ताकि करंट यहाँ पर आए और यहाँ से वापस से फ्लो होना चालू हो जाए. गेटिंग इट? तो दैट विल बी इन द इंटरनल सर्किट. ये हो गया आपका इंटरनल सर्किट, और ये जो है वो आपका एक्सटर्नल सर्किट है. समझ में आ रहा है? ओके, आई पुट अप फॉर द इंटरनल सर्किट. ओके, दैट वाज थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट एंड इट मूव्स it flows from the negative terminal to the positive terminal inside the cell through its electrolyte. Why? So as to maintain a continuous flow of current. Getting it? यहाँ पर क्या था? ओके, लेट मी गो थ्रू इट प्रॉपरली. सिंबल्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं? फॉर द फर्स्ट सिंबल इज अबाउट द सोर्स ऑफ करंट. सोर्स ऑफ करंट आर ऑफ टू टाइप्स, AC एंड DC. दैट इज योर ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट कहाँ पर मिलता है एवरीडे लाइफ में? मीन्स इन आवर हाउसेज, वो जो MCP वगैरह होता है ना वहाँ पर. और AC जनरेटर, जब लाइट चला जाता है तो बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, थिएटर्स में वगैरह, दोज आर कॉल्ड एज AC जनरेटर्स. वेयर डायरेक्ट करंट किस में होता है? ये जो पोर्टेबल जो होते हैं ना सब, सेल्स एंड बैटरीज. Okay, now what is the use of this source of current? It is to supply electric current so that it maintains a flow of charge. In laboratory, all these cells, Leclanche, Daniell and lead accumulator. How do we represent? Okay, the first diagram I have shown you here. ये first diagram है जहाँ पर this is your single cell, एक single cell है ये. This is your single cell. Are you able to see? Yes. Okay, this is your single cell जिसके अंदर there are two vertical lines, देख रहे हो, of unequal length. One is bigger, one is smaller. The longer one is denoted as positive and it is called as an anode. The shorter one is denoted negative and it is called as an cathode. Now when I connect, this was already previously revised. So when a current is drawn, current जब बैटरी में से हम लोग सेल में से निकालते हैं, it always flows from positive terminal to the negative terminal. कहाँ पर? इन द एक्सटर्नल सर्किट, बाहर की तरफ, बैटरी के बाहर. लेकिन जब सेल के अंदर है तो सेल के अंदर क्या हो रहा है? इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल. मैंने एरो बताया हुआ है यहाँ पर, ये एरो, इट इज़ मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. इट फ्लोज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल. कहाँ से? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट्स.
थ्रू इट्स इलेक्ट्रोलाइट सो एज टू मेंटेन अ कंटिन्यूस फ्लो। जब तक ये करंट ऊपर नहीं जाएगा तब तक वहाँ से बाहर करंट नहीं आएगा। गेटिंग इट? दिस इज अबाउट द सोर्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि व्हेन यू आर यूजिंग यू नीड अ हैवी करंट, यहाँ पर क्या होगा, वीक करंट मिल रहा है, वॉट एवर करंट यू आर गेटिंग इज अ वीक करंट। बट इफ यू नीड अ हैवी करंट, तो हैवी करंट के लिए फॉर वी यूज अ बैटरी। बैटरी, हाउ द बैटरी इज डिनोटेड, ओके दिस एप्लीकेशन इज ओवर। यहाँ पर इसको मैं रब आउट कर रहा हूँ। नाउ ये जो होता है, दिस इज योर ए। व्हेन यू वांट अ बैटरी, अभी इसमें मैंने क्या किया था, अ लॉन्गर लाइन एंड अ शॉर्टर लाइन, बराबर है, प्लस एंड माइनस, ओके। अभी इसी को ही इफ आई वांट टू मेक इट अ बैटरी, आई कनेक्ट नंबर ऑफ सेल्स। तो जब नेगेटिव है तो आई हैव टू कनेक्ट अ पॉजिटिव टू इट, आई हैव टू कनेक्ट अ पॉजिटिव टू इट। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट करूँगा एक पॉजिटिव, उसके बाजू में नेगेटिव, और चाहिए तो उसको और एक पॉजिटिव कनेक्ट करो और एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो व्हेन सो मेनी नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर द डायग्राम बिकम्स अ बैटरी। समझ में आ रहा है? इट इज कॉल्ड एज अ बैटरी। तो ये प्लस है और ये फाइनली माइनस मिलेगा अपने को। ऑलवेज द नेगेटिव शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तभी जाके वो बैटरी यूजेबल रहेगा। एंड दिस इज बोथ फॉर द डीसी टाइप ऑफ करंट, जो बराबर है, ये भी डीसी के लिए है, ये भी डीसी के लिए। और एसी के लिए वी यूज अ साइन कर्व, मतलब फॉर दिस वी मेक अ सर्कल, दिस इज योर वायर, एंड उसके अंदर वी मेक अ साइन कर्व, दिस इज कॉल्ड एज अ साइन curve inside it. This denotes the alternating current. Getting it? A, B or C. Alternating current, AC. This is called as an AC source. A alternating current का source है. Got it? बैटरी मिल गया, कैथोड एनोड एक्सप्लेन कर दिया मैंने, अल्टरनेटिंग करंट भी एक्सप्लेन कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोर्स। द फर्स्ट इज द सोर्स ऑफ करंट। सोर्स ऑफ करंट के लिए 3 टाइप्स, फर्स्ट अ नॉर्मल सेल, सेकेंड इज अ बैटरी एंड थर्ड इज अ एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अ की। नेक्स्ट टॉपिक इज योर की। की मतलब एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ बटन, जो नॉर्मली हम लोग बटन यूज करते हैं, स्विच ऑन एंड ऑफ करते हैं, दैट इज योर की इन केस ऑफ अ सर्किट डायग्राम। व्हाट इज द यूज ऑफ सच अ की? इसका यूज, द यूज ऑफ सच अ की इज जस्ट इट इज यूज टू पुट द करंट ऑन एंड ऑफ इन अ सर्किट। जब भी सर्किट चल रहा है उसको ऑन या ऑफ करना हो तो वी यूज अ की और अ बटन, बराबर है। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज? वील सी दे आर नेम्ड एज आइदर इट मे बी अ प्लग की, और इट मे बी अ स्विच की, और इट मे बी अ टैपिंग की। अब ये कैसे होते हैं, हाउ डू दे लुक, विल सी टू इट ओपन और क्लोज सर्किट के अंदर। ओके, सिंबल्स में बता देता हूँ। अच्छा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, हाउ इज द की रिप्रेजेंटेड? रिप्रेजेंटेशन, हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर के। याद रहेगा, कैपिटल लेटर के। ओके ओके, सो अभी इसके अंदर we need to learn about 2 definitions. Diagrammatically I'll show you all these things later, but उसके पहले there are 2 definitions, important definitions. What is an open circuit? Open circuit, open circuit किसको बोलते हैं? When the key is open, की open है, की open मतलब बटन बंद है, बराबर है, that is the plug is taken out, plug is taken out, then what happens? The circuit remains incomplete, the circuit is incomplete, और जब incomplete है तो उसको बोलेंगे and is called as
an open circuit. Getting it? ये भी I'll explain. Just I'm putting up the notes first. Okay. Then there is a closed circuit. Closed circuit. Closed circuit क्या होगा? When it is closed. Closed यानी बटन चालू. Opposite है. हिंदी में कुछ अलग बोलते हैं and English में it is pronounced something different. So here we say that when the key is closed, when the key is closed, that is क्या करेंगे? The plug, इसमें taken out था, इसमें the plug is put in. The plug is put in. जैसे ही plug को put in करेंगे, what happens is the current starts flowing. The current flows through the circuit. Okay, when it is flowing through the circuit, then it is said to be closed. तभी we call it as a closed circuit. समझ में आ रहा है? ओके, ये हो रहा है कि अच्छा ये हुआ, दो डेफिनेशंस हो गया. नाउ हाउ इट इज़ कनेक्टेड. कनेक्शन, ये जो भी कनेक्शन करेंगे इन द सर्किट डायग्राम वेयर इट इज़ कनेक्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ इट इज़ कनेक्टेड. द की जब भी कनेक्ट करेंगे सर्किट डायग्राम के अंदर, द की इज ऑलवेज connected to the wire such that it is connecting the higher potential, that is from the positive terminal ऑफ द बैटरी. इसके लिए कोई भी रे डायग्राम के अंदर देखो, की के एरो के साइड में ही, की के अपना सेल के पॉजिटिव साइड के ऊपर ही हमेशा की रहेगा. जैसे कि अगर ये सेल है, वन इज़ बिगर वन इज स्मॉलर, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, बराबर है. तो व्हेन वी आर मूविंग ऑन दिस साइड, यहाँ पर हम लोग की को प्लेस करेंगे. समझ में आ रहा है? द की इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द पॉजिटिव डायरेक्शन. समझा? द की इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द वायर. ये वायर है अपना, इट इज़ द वायर, इट इज़ कनेक्टेड फ्रॉम द हायर पोटेंशियल. हायर पोटेंशियल मतलब कौन सा? फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी. ये सेल दिखाया मैंने, ये रहा आपका बैटरी. चलेगा? ओके. सो नाउ लेट मी गो थ्रू इट अगेन. एंड बिफोर दैट कुछ बताना है. यहाँ पर देर इज़ अ स्पेस, तो यू कैन हैव अ बेटर लुक एट इट. ओके, यहाँ पर वन एट अ टाइम. ओके, ये मैं रब कर लेता हूँ. टेकिंग वन एट अ टाइम. नाउ सपोज, नहीं मुझे जगह चाहिए ज़्यादा. सो फर्स्ट लेट मी गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स. ओपन और क्लोज्ड सर्किट को पहले समझ लो. वेन एवर वेन द की इज़ ओपन, वेन द की इज़ ओपन यानी यहाँ पर मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, हम लोग लिखते हैं बटन चालू है. बट वेन द की इज़ ओपन, वेन द की इज़ ओपन बटन बंद है. यहाँ पर बटन बंद है. ओके, व्हेन द की इज ओपन का मतलब जब बटन बंद है, अपने लिए, अपने सर्किट के लिए, अपने जो मीटर, अपना जो बोर्ड है ना, उसके अंदर के बारे में बोल रहा हूँ. सो व्हेन द की इज ओपन या फिर व्हेन द बटन बंद है, दैट इज द प्लग इज टेकन आउट, द करंट इज इनकम्प्लीट. तो क्या होगा कि वायर कंप्लीटली ज्वाइन नहीं कर रहा है, एंड दैट इज वाई वी कॉल इट एज एन, इट इज कॉल्ड एज एन ओपन सर्किट. ओके, और क्लोज में क्या होगा? व्हेन द की इज क्लोज. क्लोज मतलब क्या हुआ? अभी हम लोग ने बटन को चालू कर दिया, बटन चालू है, बटन चालू है. इसका मतलब द प्लग इज पुट इन. जैसे ही प्लग को पुट इन किया, द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द कंप्लीट वायरिंग, दैट इज कंप्लीट सर्किट, एंड देयरफॉर इट इज सेड टू बी क्लोज सर्किट. समझ में आ रहा है? ओके, अभी मैं डायग्रामेटिकली मैं आपको बता देता हूं. नाउ जस्ट लुक, हैव अ लुक एट दिस डायग्रामेटिक पार्ट. व्हेन द की इज ओपन, ये नॉर्मल प्लग की ऐसे दिखता है. देयर इज अ वायर एंड देयर इज एन ओपनिंग. उसके अंदर प्लग को अगर फिक्स किया तो वो बंद हो जाएगा. तो मतलब ये व्हेन द की इज क्लोज्ड, इसमें क्या करूंगा? एक प्रेस, एक बटन के जैसा होता है, उसको खाली उसको आपको अंदर प्रेस करना है. इसके लिए डायग्रामेटिकली खाली यहाँ पर हम लोगों ने कुछ प्रेस कर दिया, बटन को प्रेस कर दिया, तो ये की क्लोज्ड हो गया. क्लोज होना मतलब क्या हुआ? अभी करंट फ्लो होना चालू हो गया, करंट फ्लो होना चालू हो गया. यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है. वाई? बिकॉज द की इज ओपन. यहाँ पर डॉट अंदर नहीं है, मतलब इट द की इज ओपन. जैसे ही डॉट पुट कर दिया, द की इज क्लोज. समझ में आया? दिस इज अबाउट प्लग की. सेम इज अबाउट अ स्विच. स्विच में क्या है? ये
एज इफ अ बटन है, एज इफ अ बटन है, ये बटन अभी तक क्लोज नहीं है, देखो कनेक्टेड नहीं है, दो सर्कल्स को कनेक्ट नहीं किया हुआ है, दो वायर को कनेक्ट नहीं किया है, मतलब द सर्किट इज इनकम्प्लीट, इसका मतलब द की इज ओपन। जैसे इसको मैं टैप करूंगा नीचे नीचे की तरफ लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, जैसे उसको डाउन तो फिर ये कनेक्ट हो गया, अब ये कनेक्ट हो गया मतलब ये स्विच ऑन हो गया, समझ में आया, व्हेन द की इज क्लोज्ड। अभी टैपिंग की में क्या होता है, यहां पर भी देख रहे हो मैंने थोड़ा सा स्पेस रखा हुआ है, इट इज नॉट कनेक्टेड, छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, हाँ यहां पर एरो ले लो, अभी तक कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन जैसे उसको कनेक्ट करूंगा तो इट विल लुक लाइक ऐसे, और एरो इज टच टू द सर्कल, मतलब अभी ये सर्किट वापस से कंप्लीट हो गया, तो अभी करंट कैन फ्लो। तो दिस इज योर टैपिंग की, दिस इज योर स्विच एंड दिस इज योर plug key. So how it looks when it is open and when it is closed. Just have a proper look. Textbook में भी दिया हुआ है. This is just for an explanatory purpose. खाली एक चीज बताना रह जाता है कि ये जो टैपिंग की होता है वो स्पेशली कभी यूज किया जाता है। टैपिंग की जो होता है, और टैपिंग की is especially used when the current is momentarily needed in the circuit. Can anyone tell me ये momentary circuit current क्या होता है? Do you know? एकदम सिंपल है, एकदम लॉजिकल है, एकदम सिंपल है। अ टैपिंग की इज यूज्ड व्हेन करंट इज मोमेंटरीली नीडेड इन द सर्किट। जैसे अपना मोबाइल, पहले मोबाइल आता था नोकिया एंड ऑल दोस मोबाइल, उसके अंदर 1 2 3 4 सब बटन होते थे, तो बटन को हम लोग टैप करते थे ना, टैप नंबर डायल करते थे, 991234 नंबर को डायल करते थे। उससे हम क्या करते, हम लोग ये मोबाइल के अंदर ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स को हम लोग टाइप करते हैं, टैप किया, ये टैप किया तो मोमेंटरी ना, खाली थोड़ा टाइम के लिए, मतलब खाली एक नीडेड टाइम के लिए खाली नंबर को प्रेस करना है, 1 आया, नंबर को टाइप किया, 2 आया, नंबर को टाइप किया, 3 आया। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टैपिंग की विच इज यूज्ड व्हेन करंट इज मोमेंटरीली नीडेड। खाली थोड़े टाइम के लिए जरूरत है, नंबर 1 तो टिक, मोमेंटरी, खाली थोड़े टाइम के लिए, दैट इज कॉल्ड मोमेंटरीली नीडेड इन द सर्किट। सो दिस इज योर फंक्शन और द यूज ऑफ अ टैपिंग की। बाकी सब तो हम लोग ये मोस्टली लेबोरेटरी में यूज करते हैं, और ये जो घर के जो मेन्स या फिर घर में जो स्विचेस है, दिस आर ऑल दिस टाइप्स। गेटिंग इट? सो वी स्टडीड ऑल अबाउट द की, और वी कॉल्ड इट एज बटन। इट इज द यूज ऑफ द की इज मेनली टू पुट द करंट ऑन एंड ऑफ इन द सर्किट। There are 3 types हम लोग ने देखा, it is a plug key, a switch key and a tapping key. How they look when it is open and how they look when they are closed. And also we studied about the definition, what is an open circuit, what is a closed circuit, and one more thing I gave you, how it is connected, connection. Okay, remember all these points separately so that it becomes easier for your MCQs part and also for your single line one liners like definitions and all those things. So have a proper view. दिख रहा है ये पूरा सा, एक बार finally देख लो, this and this. Okay, so this ends up with the key. We proceed further.